دنیا میں ممتا کی ایک شاہکار ماں، نور نظر کو دیتی ہے بے لوث پیار ماں، گھر ایک سلطنت ہے اگر تاجدار ماں، غربت ہو لاکھ پھر بھی ہے با اقتدار ماں، غربت ہو لاکھ پھر بھی ہے با اقتدار ماں، دیکھو وسیع قلب ہے دل کی غنی ہے ماں، دیکھو وسیع قلب ہے دل کی غنی ہے ماں، بچوں کے سر پہ سایہ رحمت بنی ہے ماں، بچوں کے سر پہ سایہ رحمت بنی ہے ماں، یہ مظہر صفات خدا بند ذوالجلال، لمحہ بلمحہ رکھتی ہے اولاد کا خیال، دل ہے کشادہ رب نہیں کرتی کوئی سوال، سب جانتے ہیں اس کی نوازش ہے دوال، نور نگاہ حکم عدولی اگر کرے، نور نگاہ حکم عدولی اگر کرے، غصے کو پی کے پھر بھی کرم کی نظر رکھے۔ آئیے میں جناب سرور تعالیٰ علی کو موازنہ تشریف لائے اور ماں کو ماں سے کوئی نظر پیش کرے۔ آباد شمع شوق سے یہ رہگزر رہے، آباد شمع شوق سے یہ رہگزر رہے، کرو بلا کی سمت وفا کا سفر رہے، آباد شمع شوق سے یہ رہگزر رہے، کرو بلا کی سمت وفا کا سفر رہے، شام اودھ نہ صبح بنارس ہے غرض، شام اودھ نہ صبح بنارس ہے غرض، آنکھوں میں کربلا کی بھری دوپہر رہے، آنکھوں میں کربلا کی بھری دوپہر رہے۔ حضرات، ماں کے عنوان سے خدمت میں جیسا کہ بھائی نے کہا چند اشعار پیش خدمت میں مراجعہ کرنا کہ مشکلات دہر سے ہے گرچہ دل افگار ماں، مشکلات دہر سے ہے گرچہ دل افگار ماں، ہر گھڑی اولاد کی الفت سے ہے سرشار ماں، ہر گھڑی اولاد کی الفت سے ہے سرشار ماں، پھول سارے چن کے رکھ دیتی ہے بچوں کے لیے، پھول سارے چن کے رکھ دیتی ہے بچوں کے لیے، اپنے حصے کو بچا لیتی ہے ہنس کر ہار ماں، اپنے حصے کو بچا لیتی ہے ہنس کر ہار ماں، اور سونپ دیتی ہے خزانہ عشق اہل بیت کا، سونپ دیتی ہے خزانہ عشق اہل بیت کا، رہ کے غربت میں بھی ہوتی ہے بہت زردار ماں، رہ کے غربت میں بھی ہوتی ہے بہت زردار ماں، اور سونے دیتی ہی نہیں بچے کی چاہت اس لیے، سونے دیتی ہی نہیں بچے کی چاہت اس لیے، رات کو سوتی ہوئی آنکھوں سے ہے بیدار ماں، رات کو سوتی ہوئی آنکھوں سے ہے بیدار ماں، اور روز و شب مصروف ہو چاہے کسی بھی کام میں، روز و شب مصروف ہو چاہے کسی بھی کام میں، باندھ کر رکھتی ہے بچے سے نظر کا تار ماں، روز و شب مصروف ہو چاہے کسی بھی کام میں، باندھ کر رکھتی ہے بچے سے نظر کا تار ماں، اور عالم زر میں لیا روحوں سے جو اللہ نے، عالم زر میں لیا روحوں سے جو اللہ نے، رات کو بستر پہ دہراتی ہے وہ اقرار ماں، رات کو بستر پہ دہراتی ہے وہ اقرار ماں۔ یہ شعر بھی دیکھیں کہ اس عمل میں ہاتھ کر لیتی ہے زخمی عمر بھر، اس عمل میں ہاتھ کر لیتی ہے زخمی عمر بھر، راہ بچوں کے لیے کر جاتی ہے ہموار ماں، اس عمل میں ہاتھ کر لیتی ہے زخمی عمر بھر، راہ بچوں کے لیے کر جاتی ہے ہموار ماں، اور چار اولادوں کو ہنس کر پالتی ہے مامتا، چار اولادوں کو ہنس کر پالتی ہے مامتا، چار اولادوں پہ آخر ہو گئی کیوں بار ماں، چار اولادوں کو ہنس کر پالتی ہے مامتا، چار اولادوں پہ آخر ہو گئی کیوں بار ماں، اور پاس ہے اولاد یہ احساس ہی اکثیر ہے، پاس ہے اولاد یہ احساس ہی اکثیر ہے، کچھ دواؤں کی طلب رکھتی نہیں بیمار ماں، کچھ دواؤں کی طلب رکھتی نہیں بیمار ماں، اور گردن مسلم نہ اٹھ پائے گی احسانات سے، گردن مسلم
کر دیتی ہے ساتھ، تھام لیتی ہے بہن کی شکل میں رہوار ماں۔ پھر میں ایک بار مومن سے گزارش کر رہا ہوں، اب میری فہرست میں صرف اور صرف جناب ڈاکٹر ذیشان صاحب جو مقالہ ماں کے عنوان ماں کے ٹاپک پر مقالہ پیش کرنے کے لیے تشریف لائے، لیکن جناب الحاج الرضا صاحب نظر نواز ہو رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ تمام لوگوں کو لے کر فرش ادا تک آ جائیں تو بہتر ہوگا۔ آئیے ڈاکٹر ذیشان صاحب مقالہ پیش کریں۔ نعرہ سوال۔ بس ایک افسانوی نثر ہے جس میں ہمارے جناب مولانا ظفر اللہ جوہری صاحب کی زندگی کا سفر، ان کی تعلیمی زندگی، ان کی ماں کا انتقال، اس کو چند الفاظ میں پرونے کی کوشش کی ہے۔ اور اس میں ایک کردار ہے میں واحد متکلم، وہ اپنی زبان جو ہے، اپنی زبانی اس افسانوی نثر کو بیان کر رہا ہے۔ ساتھ اس جذباتی نثر کو صرف محسوس کریں تو مجھے انتہا خوشی ہوگی۔ زیادہ نہیں، 4-5 منٹ کی زحمت، مجھے معلوم ہے کہ آپ مولانا محسوس کو سننا چاہتے ہیں، لیکن شاید آپ کو بھی اس میں لطف ملے گا۔ دیکھیے کہ ماں کے بے پناہ محفوظ شکم سے جیسے ہی دنیا میں میری پیش رفت ہوئی، میں پورے 9 مہینے چھوٹا ہو گیا۔ میری بساط ہی کیا تھی کہ میں کسی طرح کا احتجاج کرتا، گھر اور خاندان پر مسلط خوشی میں مخل بھی نہیں ہونا چاہ رہا تھا۔ وہ میری ظاہری زندگی کا یہ پہلا دن تھا اور سوائے ماں کے کسی کو کیا علم تھا کہ اس 9 مہینے دنیا و جہان کے بارے میں کتنا جان چکا تھا۔ وہ مرد شیر افغن جس کی شریانوں کا جونا رہو قطرے سے گوہر بن کر میری آمد کے کارساز بنا، ہر طرف مبارکباد کے تمغے وصول رہا تھا۔ اسے کیا معلوم کہ تخلیق کے ابتدائی مرحلوں سے گزر کر اختتامی مرحلوں تک پہنچنے میں ماں نے لمحہ لمحہ کتنی صدیوں کا سفر عبور کیا تھا، کتنی آہستہ آرامی کے ساتھ میرے لیے تگ و دو کی تھی۔ نہ جانے کتنی خوشیوں نے قدموں کے حساب میں دم توڑ دیا تھا، نہ جانے کتنے ارمان رات کی تاریکی میں شب برات بنے تھے، نہ جانے کتنی تمنائیں عید کا چاند بنی تھی، نہ جانے کتنے احساسات پروان چڑھے تھے، دکھ درد کی نہ جانے کتنی خوش آمیز لکیریں ماں کی پیشانی پر مچل کر شب کے سناٹے میں صبح کی آمد کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ ماں کی تخلیق اس کے بازوؤں کے حساب سے بلبلا رہی تھی اور میں بند آنکھوں سے نیم تاریک کمرے کے در و دیوار میں ماں کے محفوظ مسکن کو تلاش کر رہا تھا۔ 2 سال تک ماں مجھے خون جگر پلاتی رہی، لفظ آدم کا خوشنما پھل، گندم کی روٹیاں شکم دوز ہوئی تو گلی محلے کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ نہ پاؤں میں چپل، نہ زرد برد لباس، نہ کھانے کے سدھ، نہ پینے کے سدھ، نہ صبح کی خبر، نہ شام کا پتہ، گلی ڈنڈا، کنچے، لٹو، آم کے باغات، لو کے تھپیڑے، سرد ہوائیں، آواری، بے راہی، لاپرواہی اور ناقدری کے درمیان اور ناقدری کے بیچ زندگی ماں کی دعاؤں کے سہارے آگے بڑھتی رہی۔ 6 سال کی عمر میں اسکول میں داخلہ ہو گیا۔ میں چند کاپیوں اور کتابوں کا بوجھ اٹھائے تختی کو ہاتھ میں لٹکائے گھر سے اسکول کے لیے نکلتا اور 4 بجنے کا انتظار کرتا رہتا۔ خدا کر کے میں نے 5ویں جماعت پاس کر لی۔ ماں نے اس خوشی میں نظر و نیاز کا اہتمام کیا، لڈو تقسیم کیے گئے۔ مجھے دیکھ کر ماں کی آنکھوں میں ریشمی ڈورے تیرنے لگتے، ہاتھ دعا کو بلند ہوئے۔ میری طرف ماں نے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ دنیا کی تمام تر محبتیں، الفتیں، شفقتیں ماں کی آنکھوں میں مچل رہی تھیں۔ میں وطن سے دور مرکز علم و ادب میں تعلیم حاصل کرنے چلا گیا۔ ماں کی دعائیں فاصلوں کو قریب کرتی رہیں۔ ایک دن تمام دوریاں ماں کے قدموں میں سمٹ گئیں۔ اب مجھے ماں حسرت بھری نگاہوں سے نہیں بلکہ فخر و انبساط کی نظروں سے دیکھتی۔ میں جیسا بھی تھا ماں کے لیے سرمایہ کل تھا۔ زندگی چلتی رہی، وقت گزرتا رہا، ماں کے نقش قدم پر سجدے ہوتے رہے، ماں کی دعاؤں کا شامیانہ ملتا رہا، گھر میں خدا کی نمائندگی ہوتی رہی۔ مگر ایک دن ہوا نے رخ بدلا۔ ماں کی کمزور ہڈیاں ہوا کے رخ کو سمجھ نہ پائیں اور ماں نے اپنے وجود کو ہمارے حوالے کر دیا۔ اب میں حسرت بھری نگاہوں سے ماں کو دیکھتا۔ اللہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ مولانا موصوف کی والدہ کو خالی ہو گئی تھی، اس کو محسوس کریں آپ۔ اب میں حسرت بھری نگاہوں سے ماں کو دیکھتا
माँ की आहट को महसूस करता, माँ को गोदी में उठाता, खिलाता पिलाता, सिराने बैठता, माँ का मखलूज हाथ अपने हाथों में लेकर सोचता, ये वही पैकरे कुल है जिसका जौहर मिंबर की बुलंदियों तक पहुंचा। साहब रियाज बना, उस्ताद बना, माँ अपनी मलगजी निगाहों से मेरी तरफ देखती, आंखों में प्यार व मोहब्बत तो तूफान, ज़बाने बेज़बानी में दुआओं का लामुतनाही सिलसिला, रेंगते हाथों से दस्ते शफ़क़त फेरने की तमन्ना, उठ बैठने की ललक, वक्त ने भी अजीब करवट बदली। माँ एक बच्चे की तरह बिस्तर पे और मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैंने माँ की जगह ले ली। ये तो सरासर गुनाह होगा। कहाँ माँ और कहाँ मैं, कहाँ कुल और कहाँ जुज़, कहाँ खालिक, कहाँ मखलूक, कहाँ हाकिम, कहाँ महकूम, कहाँ जन्नत और कहाँ मैं उसका मुतमन्नी। हाँ, इतना जरूर हुआ कि मैं अपने खालिक़े मजाजी से और करीब हो गया। मेरा वक्त जन्नत के पानी गुजरने लगा। रात के पुरसकून सन्नाटे में माँ की आहट महसूस होती, मेरे हवास बाख्ता हो जाते। फिर मेरी फिक्र माँ के कदमों में लिपट जाती और मैं सोचने लगता, माँ दुनिया का हसीन तस्वुर, माँ लतीफ तरीन एहसास, माँ बेलौस मोहब्बत की इकलौती मिसाल, माँ कुव्वते बर्दाश्त की नाकाबिले यकीन हस्ती, माँ सब्र व ज़ब्त का आला तरीन नमूना, माँ सूरज के मुकाबिल चांदनी, माँ जुल्म के खिलाफ अमन, माँ तारीकी के मुकाबले उजाला, माँ जागते सितारों की राज़दां, माँ शाम अवध, माँ सुबह बनारस, माँ कसीदा, माँ मसनवी, मुसद्दस, मुखम्मस, रुबाई, गज़ल, माँ अफ़साना, माँ कहानी, नावल, माँ जिंदगी, माँ मौत, माँ हाकिम, माँ खालिक, माँ ज़मीन, माँ आसमान, माँ सुबह, माँ शाम, माँ तहज़ीब, माँ सक़ाफ़त, माँ समंदर, माँ कायनात, माँ लिबास, माँ ग़िज़ा, माँ सेहत, माँ दवा, माँ दुआ, माँ हयात, माँ शजर, माँ साहिबान, माँ इज़्ज़त, माँ इस्मत, माँ दौलत, माँ शफ़क़त, माँ हशमत, माँ अक्ल, माँ शऊर, माँ बसीरत, माँ बसारत, माँ मदरसा, माँ यूनिवर्सिटी, माँ नमाज, माँ रोज़ा, माँ हज, माँ ज़कात, माँ खुम्स, माँ जिहाद। इन तमाम खूबियों का वाहिद मरकज़ दिन ब दिन अपने खालिक़े हक़ीक़ी से करीब होता रहा। बिस्तर पे लेटे लेटे जन्नत का सफ़र सरहद जन्नत से करीब होता रहा। मजाज हकीकत से मिलने को दर पे होता रहा। लम्हात सदियों से करीब होते रहे और एक दिन तंगी ज़मीन उसते फलक से मरूब हो गई। शब तवील सन्नाटे में मौत का फरिश्ता हस्बे दस्तूर बिना दस्तक दिए अपने मेहमान को लेकर चला गया। मेरी जिंदगी अपने महवर व मरकज़ से दूर हो गई। अब न होने में होने का एहसास शदीद तर होने लगा। घर के दरो दीवार रहमतों से महरूम हो गए। माँ के बारे में जो कुछ पढ़ा लिखा सुना और समझा था वो अब नजरों से देख रहा था। वो माँ जिसने मुझे आगोश में खूने जिगर पिलाया था, आगोश जन्नत में अपने हमनवाओं के साथ जिक्र खुदा में मसरूफ है और जिक्र सरवर यहाँ से वहाँ तक राबते का काम कर रहा है। खुदा करे ये सिलसिला ताउम्र जारी रहे। आमीन। फ़क़त वस्सलाम। और आप इसी के साथ मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना कमर सुल्तान साहब क़िबला की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि रौनक अफ़रोज़ मिंबर हों और अपने पुरनूर बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। नारे सलवात। एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर सकीना
मदीना वाला मरहूमा बिनते मोहम्मद महसिन। کیا ضرورت پڑی تھی کہ اس آیت کو اتنی شہرت ملی؟ تو ایک ہی لفظ میرے سامنے آتا ہے، میں کتنا ہی گریز کروں اس لفظ کے کہنے سے، لیکن وہ لفظ میرے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ لفظ یہ ہے کہ یہ آیہ کریمہ وہ ہے جس کے شان نزول کو جناب فاطمہ نے بیان کیا ہے۔ متوجہ ہو جائیے گا، میں یہیں سے گریز کروں گا جناب فاطمہ کی۔ یہ آیت وہ ہے جس کے شان نزول کو جناب فاطمہ نے بیان کیا، اور اس کے شان نزول کا ایک نام حدیث قصہ ہے۔ اس کے شان نزول کا ایک نام حدیث قصہ ہے۔ حدیث قصہ اصل میں وہی الفاظ ہیں جو جناب فاطمہ نے آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے موقع پر اپنی زبان سے ادا کیے تھے۔ اب آپ متوجہ ہو گئے، تو میں نے راویوں سے پوچھا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ اس حدیث کی اتنی شہرت ہو گئی
کہ ہر آدمی اس حدیث سے واقف ہو گیا ہے، غیر افراد تک اس حدیث سے استفادہ کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کوئی جواب نہیں آتا، سناٹوں میں زندگی گزرتی ہے، سوائے اس کے کہ ایک ہی جواب آتا ہے، چونکہ یہ الفاظ ایک دن جناب زہرا کی زبان پر جاری ہو گئے تھے، لہذا یہ زبان مقدس کی برکت ہے کہ یہ لوگوں کے لیے مشکل کشا بنتے چلے گئے، یہ لوگوں کے لیے مشکل کشا اور حاجت روا بنتے چلے گئے۔ اب یہ پوچھنا، یہ سوچنا، یہ ماننا کہ صاحب کیا حدیث قصہ میں ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کی بحث مت کرو، وہ تو کسی دن جب حدیث قصہ کے موضوع پر گفتگو ہوگی تبھی بات ہوگی، لیکن اتنی سی بات تو میں بھی جانتا ہوں کہ حدیث قصہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ایک بات تو طے ہے کہ 5 معصوموں نے ایک جگہ بیٹھ کر جو نسخہ لکھا ہے اسے حدیث قصہ کہتے ہیں۔ اس کی سند کیا ہے، اس کے افعال کیا ہیں، اس کا نظام کیا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، کیا ہے، مجھے یہ نہیں معلوم، لیکن اس کے نورانی الفاظ میں یہ بات تحریر ہے کہ 5 معصوموں نے مل کر جو نسخہ لکھا ہے اسے حدیث قصہ کہتے ہیں۔ میں نے شاید لفظ کمزور رکھا اس لیے بات آپ تک نہیں پہنچ سکی، میں نے 5 معصوم کہا، یہ بات بہت آسان ہے 5 معصوم کہنا، بات 5 معصوموں کی نہیں ہے، وہ 5 کے 5 مشکل کشا تھے، وہ 5 کے 5 حاجت روا تھے، وہ 5 کے 5 قاضی الحاجات تھے۔ ایسے افراد نے اپنی قوم کی مشکلوں کو حل کرنے کے لیے، ان کے گھروں تک ایک مشکل کشا پہنچانے کے لیے اپنی چادر میں بیٹھ کر میٹنگ کر کے جو چیز تحفے میں لوگوں تک پہنچائی ہے اسے ہم پیار سے حدیث قصہ کہتے ہیں، اسے ہم پیار سے حدیث قصہ کہتے ہیں۔ اور اب اس کا عالم یہ ہے کہ وہ بچے کی مشکل کشائی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ عالم انسانیت اپنی آنکھیں کھول کر دیکھے کہ کتنی قدرت اور کتنی وسعت پائی جاتی ہے ان الفاظ میں، جو آج پورے سماج کے لیے مشکل کشائی کا کام کر رہے ہیں، حاجت روائی کا کام کر رہے ہیں۔ لوگ اس کی سند پوچھ رہے ہیں جس نسخے نے پوری دنیائے عقیدت پر قبضہ کر لیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ہر لفظ کی تشریح کرتا رہوں گا، جس اس کے لیے سند کی بات کر رہے ہیں، جس کے نورانی الفاظ لوگوں کے دماغ میں سرور عطا کر رہے ہیں، اس کے لیے سند پوچھ رہے ہیں جس کی سند دنیا کے گھروں میں پائی جاتی ہے، اس کے لیے سند پوچھ رہے ہیں جو اولادوں میں رچ بس جا رہا ہے، اس کے لیے سند پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سند اس کے لیے پوچھی جاتی ہے جس کا کوئی اعجاز باقی نہ رہ جائے۔ حدیث قصہ کا اعجاز تو باقی ہے، یہ کل بھی مشکلیں حل کر رہی تھی، آج بھی مشکلیں حل کر رہی ہے، یا میں لفظوں کو بدل کے یوں کہہ دوں، نہ کل کی نسل نے اسے بھلایا تھا، نہ آج کی نسل اسے بھلا پا رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن ایک چیز میری سمجھ میں آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں نے یہ پوچھا باقاعدہ علماء سے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی شہرت حاصل ہو گئی۔ یہ ہے حدیث قصہ آپ کے سامنے ہے، کہا مولانا ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لفظیں اس دن باوزن، قیمتی، پربہا اور بیش قیمت ہو گئی جس دن زبان مقدس پر جاری ہو گئی۔ متوجہ رہیے گا۔ تو میں نے کہا کہ اب لپیٹ کر رکھ دو دنیا کے سامنے حدیث قصہ، اور دنیا سے ایک ہی بات کہو کہ جناب زہرا کی فضیلت کے لیے سارے دفتر اگر بند ہو بھی جائیں تو حدیث قصہ کی فضیلت ہی کافی ہے کہ وہ جناب زہرا کی حقیقت کو سمجھا سکے۔ متوجہ رہیے گا۔ کہا یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا سنیے، اگر واقعاً حدیث قصہ لوگوں کی مشکلیں حل کر رہی ہے، مصیبتیں آسان کر رہی ہے، اعجاز دکھاتی جا رہی ہے، حاجتیں پوری کرتی جا رہی ہے، قضائے پورے کرتی جا رہی ہے، تو یہ بات تو طے ہے کہ یہ جناب یہ حدیث قصہ بات ہے جناب فاطمہ کی، ذات نہیں ہے جناب فاطمہ کی۔ مجلس تو تمام ہو گئی اس
जुमले में, अमा जिसकी बात में इतना दम है उसकी जात में कितना दम है, उसकी जात में कितना दम है। अब इस खानदान की रिफत और उलूए शान तक पहुंचना ये मेरे मरकज़े फिक्र और इदराक के बस का रोग नहीं है, लेकिन पहुंचना जरूरी है, इसलिए मैं सहारा ले रहा हूं। मैंने रावियों के सामने मुस्कुराना शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया, खिलखिलाना शुरू कर दिया कि तुम तो ये कह रहे थे कि ये घराना मुनहदी में फजीलत है, तुम तो ये कह रहे थे कि इस घराने की कोई कीमत नहीं है, इनकी तो बात में इतना दम है कि इनकी बात को कोई ना रोक सका, इनकी जात को कोई क्या रोकेगा। जो नुस्खा चादर के नीचे लिखा गया था वो दुनिया में इतनी शोहरत पा गया। तवज्जो दीजिएगा, सवाल ये पैदा होता है कि इस रिवायत को दबाना चाहिए था, इस रिवायत को खत्म हो जाना चाहिए था, जिसकी रिवायत में सिर्फ जनाबे फातिमा खड़ी हैं, लेकिन 114 लिस्ट रावियों की है और रिवायत गुम। 150 नाम रावियों के लिखे हैं और रिवायत का पता नहीं। एक रिवायत, एक राविया जनाबे फातिमा और रिवायत की शोहरत आम। क्या वजह बनी, क्या वजह बनी? कोई तो वजह होगी। तो मैंने रावियों से पूछा कि वजह क्या है? खानदान अहले बैत की फजीलत इसी लफ्ज में आ रही है, अगर आप तक पहुंच गई तो मैं अपने लफ्जों में कामयाब हो जाऊंगा। मुतवज्जे हो जाइएगा, मैंने पूछा क्या वजह है कि ये एक राविया जनाबे फातिमा की शोहरत आम हो गई रिवायत, और जहां 150 रावी लिखे थे वो रिवायत गुम हो गई। उसका दुनिया को पता नहीं है। 14,000 15,000 हदीसों का ढोल बजाने वाले अपने आप में दम खुद है, और एक ऐसी रिवायत जो चादर के अंदर हो, घर की दीवारों के महदूद दायरे में, वो इतनी शोहरत पा जाए कि घर घर में आ जाए। ये खुलूसे दिल का कमाल नहीं है, हकीकत का कोई कमाल है। तो एक मर्तबा रावियों ने कहा कि मौलाना जितना एतबार इस हदीस पे हो सकता था उतना एतबार किसी हदीस पे नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? कहा इसलिए कि जहां 150 रावियों के नाम लिखे थे वहां सोचा जा रहा था कि इनमें झूठे कितने हैं, सच्चे कितने हैं। बस यही पर रुकूंगा। सलाम भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जहां जनाबे ज़हरा का नाम आया वहां ये सोचना ही महाल हो गया कि झूठा हो सकता है। वहां तो सच ही सच है, सच ही सच है। अब अगर आज आप में दम है तो मैं इस लफ्ज पे रुकना चाह रहा हूं थोड़ी सी देर के लिए। मैंने रावियों से कहा कि जाओ अपने खानदान का मातम करो। यह कमाले सिदाकत है कि जनाबे फातिमा ने लफ्जों को गौर से देख लिया और वो दुनिया के लिए हाजत रवा बने। चाहते हुए भी रिवायतें रुक ना सकी और हदीसें के साथ दुनिया में शोहरत आम पा गई। क्यों? इसलिए कि दुनिया ये जानती थी कि अगर फातिमा ने कहा है तो इसमें झूठ का इम्कान हो ही नहीं सकता। तवज्जो दीजिएगा, इसमें झूठ का इम्कान हो ही नहीं सकता। क्यों झूठ का इम्कान नहीं हो सकता? इसलिए झूठ का इम्कान नहीं हो सकता कि यहां ये सोचा जा रहा था कि ये आदमी सच्चा है या नहीं, ये रावी सच्चा है या नहीं, ये हरमुज सच्चे हैं या नहीं, ये मुजरत सच्चे हैं या नहीं, ये मसूद सच्चे हैं या नहीं, ये इब्ने हजील सच्चे हैं या नहीं, ये इब्ने अदील सच्चे हैं या नहीं। जितने रावियों के नाम आ रहे थे सबके लिए सोचा जा रहा था ये सच्चे हैं या नहीं। मगर जैसे ही फातिमा का नाम आया साफ हो गई बात कि ये भी सच्ची है, इसके बच्चे भी सच्चे हैं, इसका शौहर भी सच्चा है, इसका बाबा भी सच्चा है। इसका मतलब यह है कि जात का सच्चा होना और है, खानदान का सच्चा होना। जाती सच्चाई और है, खानदानी सच्चाई और है। रह गई बात सिदाकत की। थोड़ी सी देर यही रुकूंगा। रह गई बात सिदाकत की तो दुनिया में अवाम और है, इमाम और। तवज्जो दीजिएगा, मोहताज और है, मुख्तार और। मैं लफ्ज़ बढ़ाता चला जाऊंगा। मोहताज और है, मुख्तार और। हम और है, वो और। हम वो है जो बटोरने आए हैं, वो है जो बांटने आए हैं। हम वो हैं जो लेने आए हैं, वो हैं जो देने आए हैं। क्या निस्बत सिदाकत को जनाबे फातिमा से? दुनिया वो है जो सच बोल के बड़ी बनी। सच वो है जो फातिमा तक
तकसीम हुआ करती तो दुनिया में हर आदमी सच बोलकर फातिमा के मद्दे मुकाबिल जाके खड़ा हो जाता। कोई भी औरत सच बोलकर, ये तो जलालपुर है, साफ लफ्जों में कहो, कोई भी सिद्दीका बनकर फातिमा के मुकाबले पे खड़ी हो जाती और ये कहती कि ये भी सिद्दीका है, मैं भी सिद्दीका। इसलिए अल्लाह ने सिद्दीका के लफ्ज में एहतियात ये रखी कि सिद्क के बाद सच्चा होना और है, सिद्क से पहले सच्चा होना और है। सिद्क के बाद सच्चा होना और है, सिद्क से पहले सच्चा होना और है। तुम सच्चे जब बने जब तुमने सिद्क को इस्तेमाल किया। सिद्क जब सिद्क बना जब उसने ज़बाने ज़हरा को इस्तेमाल किया। मैं लफ्जों को अलग बदल रहा हूं। कुछ वो है जो लफ्जों का सहारा ले रही है और कुछ वो है लफ्जें जिस जबान का सहारा ले रही हैं। कहा मौलाना ये कैसे हो सकता है, अगर वो औरत सच बोल रही है तो सिद्दीका, ये औरत सच बोल रही है तो सिद्दीका, जनाबे फातिमा सच बोल रही हैं तो सिद्दीका। मैंने कहा शायद इसीलिए परवरदिगारे आलम ने जनाबे फातिमा से कहा कि फातिमा तुम घर से निकलकर मैदान में आओ ताकि हम आयते सिदाकत नाजिल कर दें। अरे मजलिस तो हो गई है, ताकि हम आयते सिदाकत नाजिल कर दें और दुनिया को पता चल जाए कि बयान की सिदाकत और है, कुरान की सिदाकत और है। की आयत नाजिल करेंगे ताकि तुम्हारी सिदाकत का ऐलान कर सकें और दुनिया को पता चल जाए कि बयान में सिदाकत और है, कुरान की सिदाकत और है, घर में सिद्दीका बनना और है, कुरान की छावनी में सिद्दीका बनना और है। नहीं नहीं, लफ्ज़ें कमजोर पड़ रही है कमर सुल्तान, बात समझ में नहीं आ रही है। तब फिर भी मुकाबला तो होगा सिद्दीका का। क्या मुकाबला? जिसे उम्मत ने सिद्दीका कहा वो और है, जिसे नबूवत ने सिद्दीका कहा वो और है। ये तो मानना पड़ेगा। अब रह गई बात सिदाकत की, तो पहले सिदाकत ही का ऑपरेशन कर लो कि सच कौन बोलता है। सच का एतबार यह है कि एक आदमी 10 की निगाह में सच्चा, 10 की निगाह में झूठा। अमा वो सिद्क ही क्या जिसमें एहतमाल किस्म न हो। ओए हाय हाय हाय, बच्चे दीजिएगा। सच बोलने का मतलब यह है कि फौरन ही किस्म सामने आ जाता है। तो कभी सच बोला कभी झूठ, क्या है तबाह? कौन सी उम्र में झूठ बोल दिया, क्या भरोसा? कोई कुरान की सनद थोड़ी है कि आप सच ही सच बोले। अब मैं कहता हूं कि सच में क्या फर्क है, सिद्दीका में क्या फर्क है। मुतवज्जे रहिएगा। तो सिद्दीका में क्या फर्क हो सकता है? मैंने कहा तो इन्हीं से पूछोगे ये कब से सिद्दीका बनी, ये कब से सिद्दीका बनी, कब से सिद्दीका बनी? ये लफ्ज खुद बना बता रहा है कि पहले नहीं थी। मुतवज्जे है, हो सकता है सिन्ने शऊर को पहुंची हो तब सच बोलना शुरू किया हो, उससे पहले के झूठ वो कहां जाएंगे। इसका मतलब है कि इन्हीं से पूछो कि आप सिद्दीका कब बनी, तो उन्होंने एक ही लफ्ज कहा कि जब हमने वाकये को उसके मुताबिक कहना शुरू कर दिया तब हम सिद्दीका बने। मैंने कहा क्या मतलब? कहा हमने जैसा वाकया था वैसा ही बयान करना शुरू कर दिया तो लोगों ने हमें सच्चा कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या मतलब? का मतलब यह कि दीवार गिरी तो हमने कहा गिर गई, हम सिद्दीका बन गए। ओहो, मैंने कहा तुम सिद्दीका जरूर हो मगर मोहताज सिद्दीका हो। हाय 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 हाय, मोहताज सिद्दीका हो। जब तक दीवार नहीं गिरेगी तुम सच नहीं बोल सकती। मोहताज सिद्दीका हो। इसीलिए अल्लाह ने जनाबे फातिमा को सिद्दीका कहा ताकि दुनिया की मोहताज सिदाकत जनाबे फातिमा के कमाल का
सिद्दीका नहीं है, तुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि दीवार गिरे, तू तो सिर्फ कह दे, अगर कह दिया तो गिर जाएगी। इसका मतलब यह है कि मोहताज सिदाकत और है, मुख्तार सिदाकत और। मोहताज सिदाकत और है, मुख्तार सिदाकत और है। लफ्ज में मजा आएगा आपको। मोहताज सिदाकत और है, मुख्तार सिदाकत और है। बीबी तुझे कहने की जरूरत नहीं है कि दीवार गिर गई। अगर तेरे मुंह से निकल गया कि कल कपड़े दर्जी लेकर आएगा, तो अब मलक दरवाजे पे ये नहीं कहेगा कि मैं मलक हूं, यही कहेगा कि मैं दर्जी हूं, कि कहीं ऐसा न हो कि मलक के ख्याल में और फातिमा के अल्फाज में दूरी हो जाए। कहीं ऐसा न हो कि मलक के ख्याल में और फातिमा के अल्फाज में दूरी हो जाए। खबरदार, अपना मनसब याद न करना, आसमान की बुलंदी को निगाहों में न लाना। तू मलक है ये दरवाजे पर लगा बैठना, दर्जी ही कहना। मैंने मलक से कहा रिजवाने जन्नत अपने ओहदे क्यों खो रहा है? का फातिमा के दरवाजे की तारीफ यह है कि तुम्हारी बादशाहत नहीं चलती, फातिमा की मर्जी चलती है। मुतवज्जे रहिएगा, खुश नसीब वो है जो फातिमा की मर्जी से दरवाजे पे आए, बदनसीब वो है जो बादशाहत लेकर दरवाजे पे आए। मैंने मलक से पूछा कि तुझे तो ये कहना चाहिए था कि मैं मलक हूं, मैं रिजवाने जन्नत हूं, मैं आसमान का फरिश्ता हूं। का खबरदार, मुझसे ये न कहना, आज तो मौका मिला है दर्जी बनने का, आसमान के सारे शरफ मुझ में है, फातिमा के दरवाजे का शरफ आज मिला है। और सुन, मैं आसमान में पहुंचूंगा तो मलक तो कल भी था, आज भी हूं। आसमान वालों में मुझ जैसा नहीं मिलेगा। मैं आसमान के मनसब का जिम्मेदार हूं। जब मैं आसमान में पहुंचा तो वहां सब मलक थे, फातिमा का दर्जी सिर्फ मैं था। क्या कहा? अना खय्यातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं। जनाब फातिमा ने क्या कहा था? बेटा कल तुम्हारे कपड़े दर्जी लेकर आएगा। इसका मतलब मुख्तार सिदाकत और है, मुख्तार सिदाकत और है। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा से कमाल पूछते रहे, तब पता चला कि सिदाकत के मेयार को जिस कदर बुलंदी जनाब फातिमा ने दी, उससे ज्यादा बुलंदियां मिल ही नहीं सकती थी। इसीलिए फातिमा को सिदाकत की बुलंदी की खातिर अपने घर से मैदान में आना पड़ा। अब ये कहना कि साहब मैदान में क्या, मैं एक लफ्ज कहूंगा, दो आयतें ऐसी हैं जिनमें कोई इनकार ही नहीं कर सकता कि वो फातिमा की शान में नहीं है। मैं वो बहसे तो कभी करता ही नहीं जो किताबों में है, मैं तो गलियों की बातें करने वाला आदमी। मुतवज्जे हैं आप, आज उसी गली की बात करूंगा। आपसे पूछूंगा कि मैदान मुबाहिला की ये आयत अगर फातिमा की शान में नहीं है तो लफ्ज़ निसा कहीं और से लाओ, आयत नाकिस हो जाएगी अगर वजूद फातिमा हट गया। हाय हाय हाय, इसलिए कि कोई दूसरी औरत मुबाहिले में थी ही नहीं। भाई मुतवज्जिह हो गया। अब एक आयत और है जिसके ऊपर बड़ी बहसें होती हैं, जैसा कि आपने कब्ल मजलिस अल्लामा हमीदुल हसन साहब किबला, आयतुल्लाह हमीदुल हसन साहब किबला से सुना कि इसमें यह बहस होती है कि यह आयत चूंकि अज़वाज के दरमियान में है, इसलिए मुमकिन है कि यह अज़वाज की शान में नाजिल हुई हो तो जबरदस्ती ही। मसला दूसरा है, अरे चादर भी तो अज़वाज के घर में ही थी, तो बच्चे दे रहे, वो घर भी तो फातिमा का उन्हीं घरों के दरमियान था। इसीलिए एक ज़ौजा ने पूछा था क्या इजाजत है कि मैं दाखिल
कर दिया ताकि दुनिया को पता चल जाए बीवियों का मकाम और है, बेटियों का मकाम। बेटी का मकाम और ये बेटी है मेरी, ये मासूमा है, ये आयते तखीर में शामिल है। इन्नके अलल खैर, तुम खैर तक रुको बस। एक रिवायत तो उम्मे सलमा की भी है ना वहां। चलिए छोड़िए, मैं आज आपको वो कैटेगरी बता रहा हूं जिसके बाद आपकी मर्जी होगी कि ये आयत किसकी शान में है, किसकी शान में नहीं। सबसे पहले कौन आया? जनाब रसूल अल्लाह। उसके बाद कौन आए? हसन, उसके बाद हुसैन, उसके बाद अली। इतनी जल्दी तो कोई नहीं करेगा जितनी जल्दी मैं कर रहा हूं। आ गए ना मासूम मर्द। अब तक कुरान का मिजाज, वही का मिजाज, फरिश्ते का मिजाज एक ही रहा है कि जब जब ये आया है जनाब मरियम को छोड़कर, जब जब ये आया है मर्दों पे आया। सच बताइए मुझे कि जब रसूल अल्लाह चादर में हैं, इमाम चादर में हैं, हसन चादर में है, हुसैन चादर में है, तो आयत तो आना चाहिए या नहीं? भाई देखिए, जब अकली बहस हो रही हो तो कम से कम अकलन सोचना चाहिए था, आयत को आ जाना चाहिए था। लेकिन अब मेरी समझ में नहीं आता जिब्रील किसके इंतजार में रुका है। इसका मतलब यह कि जिब्रील को भी पता है कि जब तक फातिमा नहीं आएगी आयत नहीं आएगी। इसका मतलब आयत तो मोहम्मद ही पे आना थी, आयत इंतजार कर रही थी फातिमा के आने का, ताकि कल को पता चल जाए ये आयत मोहम्मद की शान में नहीं है, ज़हरा की शान में है। चलो भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब किसका इंतजार है? अगर मोहम्मद ही पे आयत आनी है तो मोहम्मद मौजूद है, फातिमा तो वहीं खड़ी है ना, आयत को आ जाना चाहिए, मगर आयत नहीं आई। तो कहा कि मैदान मुबाहिदा में जाकर सिदाकत का ऐलान करूंगी। मैंने कहा कौन सी सिदाकत? का कुरान की सिदाकत, ताकि कल को कोई सिद्दीका मुकाबला न कर सके और दुनिया को पता चल जाए कि उम्मत की सिद्दीका में और नबुव्वत की सिद्दीका में कितना बड़ा फर्क है। मैंने कहा बीबी फिर भी ये तो कहना पड़ेगा कि आप मैदान में आई, का मैदान में आना जरूरी था। इस्लाम में दो ही तरह की जंगें हुई हैं, एक जंग का नाम है मुकाबला, दूसरी जंग का नाम है मुबाहिला। खबर सुल्तान जल्दी करो जल्दी करो, एक का नाम है मुकाबला, दूसरी का नाम है मुबाहिला। मुकाबला तलवार से होता है, मुबाहिला किरदार से होता है। मुकाबला तलवार से होता है, मुबाहिला किरदार से होता है। आज जो तलवार का धनी था वो भी सबसे पीछे चल रहा था। फातिमा को रसूलुल्लाह क्यों रहे हैं? कब दुनिया को पता चल जाए किसी भी परिवार का किरदार बगैर औरत के तय नहीं होता। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। किसी भी औरत का परिवार बगैर औरत के तय नहीं होता। आज मरहला किरदार का था, आज लड़ाई किरदार की थी, आज मेयार किरदार का था। मैंने कहा बीबी जा रही हैं, कहा बिल्कुल घर से निकल रही हूं, लेकिन घर से निकलने वाली हर औरत को पैगाम दे दे कि अगर घर से निकलना तो ऐसे निकलना। मजलिस है ये, घर से निकलना तो ऐसे निकलना, घर में पलटना तो ऐसे पलटना। मैंने कहा बीबी नहीं समझा, कहा सुन, मैं अगर घर से न निकलती तो कोई शैतानी घर से न निकलती। मैंने घर से निकल के शैतानियों को मेयार दे दिया कि घर से निकलना ऐब नहीं है। अगर घर से निकलना ऐब होता तो मैं मैदान मुबाहिला में न जाती, मगर सुन, मेरे रहने का मेयार यह है कि मैं घर में रही तो कुरान की आयत, मैदान में गई तो कुरान की आयत, मैंने कदम उठाया तो कुरान की आयत, मैंने अमल किया तो कुरान की आयत। इसका मतलब यह है कि घर से निकलना ऐब नहीं है, कुरान से बाहर निकलना ऐब है। आज समाज दुहाई देता
दिल दादा बना के घेर रहे हो? कुरान में रोक दो एक लड़की को, आयतों की छावनी बना दो एक बच्ची को, कुरान के मिजाज में ढाल दो सीरत इस्लामियत को, फिर देखो कि कोई बाजार में जाकर भी अगर इज्जत नामूस पे हर्फ आ जाए तो दम निकल जाएगा। ये मुमकिन ही नहीं है। फातिमा ईसाइयों में गई और बाइज्जत आई। इसका मतलब यह है कि जिसके सर पर कुरान साया फिगन होता है वो गैरों में भी जाके इज्जत लाती है। मैंने कहा बीबी क्या मैं ये लिख दूं कि आप मैदान मुबाहिला में इसलिए गई थी, आप मैदान मुबाहिला में इसलिए गई थी कि सदाकत का ऐलान करना मकसूद था, आपके वजूद का ऐलान हो गया, बाकमाल हैं आप गई? क्या गलत सोच रहा है तू? मैं इसलिए नहीं गई थी कि ये बता सकूं कि मेरा परिवार कैसा है। मेरे परिवार का पता तो चादर में भी चल गया था। हमें दुनिया की कोई चादर छुपा नहीं सकती। हम बाकमाल थे, बाकमाल हैं, बाकमाल रहेंगे। लेकिन मेरी बात सुन, मैं ये पहचानवाने नहीं गई थी कि मैं कितनी सच्ची हूं। ये जुमला आखिरी है। ये नहीं पहचानवाने गई थी कि मैं कितनी सच्ची हूं, मैं ये पहचानवाने गई थी कि जमाने में झूठा कौन है। मैंने कहा बीबी नहीं समझा। कहा जब मैं मैदान में पहुंची तो ईसाइयों ने हथियार डाल दिए और आवाज दी कि अगर ये लोग कहें तो पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएगा, इनकी जबान के अल्फाज में इतना दम है। तो फौरन ये बात साबित हो गई कि जो मेरे मुकाबले पे खड़ा हो गया वो झूठा है। अभी तो मैं तय कर चुका। फातिमा ने यह भी बता दिया कि जब सच्चे तलाश करो तब मेरे पास आना, जब झूठे ढूंढो तब मेरे पास आना। आज के बाद जब भी तुम्हें झूठों की तलाश हो कि झूठा कौन है, तो एक ही मेयार है कि जो भी मेरे मुकाबले पे आ जाए। लफ्ज कमजोर पड़ गया। जहां भी मेरे मुकाबले पे आ जाए वो झूठा है, फिर उसे भूल के भी सिद्दीक न कहना। हाय 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 हाय, उसे भूल के भी सिद्दीक न कहना, इसलिए कि मेरे मुकाबले पे आने वाला ही झूठा है। ये तेरी सोच गलत है कि मैं मिल्कियत बागे फिदक के लिए दरबार में गई थी, मैं उसकी सदाकत कैंसिल करने गई थी। मिल्कियत बागे फिदक तो कल भी इस्लाम के काम आती थी। मेरी माँ का माल इस्लाम के काम आया, मेरे दादा का माल इस्लाम के काम आया, मेरे ससुर का माल इस्लाम के काम आया। मैं और बागे फिदक लेने जाऊंगी, अगर बागे फिदक मुझे मिल भी जाता फिर भी ये मिल्लत इस्लामिया ही के काम आता। लेकिन मैं इसलिए नहीं गई थी कि मसला सिर्फ बागे फिदक का था, मैं इसलिए गई थी कि दुनिया उसे सच्चा मान रही थी, उसके पास कोई दलील नहीं थी। मैं आयत की सिद्दीका थी, मैं दरबार में पहुंची ताकि दुनिया को पता चल जाए ये मोहताजे दलील है, मैं मोहताजे दलील नहीं हूं। मुझे उसकी सदाकत को कैंसिल करना था। क्या मेयार है तेरा सदाकत का? कितना सच्चा है तू? कौन सी कोठरी में कब सच्चा बना? मुझसे मिल। मैं दरबार में इसलिए आई हूं ताकि दुनिया को आयत सदाकत याद आ जाए। और आज दुनिया ये कह बैठे कि जिसे कुरान ने सच्चा कहा वो सच्चा है, या जिसे एक इंसान ने सच्चा कहा वो सच्चा है। कैसा सच्चा है ये इंसान? मैं उसकी सदाकत को कैंसिल करना मकसूद था। मैदान मुबाहिला किरदार की जंग थी। फातिमा शान करामत से कदम आगे बढ़ती चली जा रही थी। एक कदम आगे नबुवत चल रही थी, एक कदम पीछे इमामत चल रही थी। फातिमा के मनसब टूट टूट के कुर्बान हो रहे थे, इफ्फत झाड़ू लगा रही थी। रास्ता साफ कर रही थी, इस्मत बाजू पकड़ के चल रही थी। कमाल टूट के बरस रहे थे, नेमतें तवाफ कर रही थी, इमामत हिफाजत कर रही थी, नबुवत हिदायत कर रही थी।
न इमाम, ना आप नबी हैं न नबिया। चलो मैंने मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, ना आप वली हैं न वलिया। तो जब आप कुछ भी नहीं है तो हम कौन से मनसब से याद करें? कि दुनिया को फजीलतों की दुनिया में सिर्फ मनसब बाफजीलत नजर आता, अगर मैं ना आती पता नहीं कौन सा मेयार है। मेरा ये लफ्ज पहुंचा भी नहीं पहुंचा। अगर सिर्फ मनसब के बाद ही दुनिया में कोई शख्स अजीम हुआ करता, तो अगर मैं ना आती तो दुनिया यही कहती कि बगैर मनसब के कोई अजीम नहीं है। मगर मैं आई और कोई मनसब नहीं था, फिर भी नबी को खड़ा होना पड़ा, ताकि दुनिया को पता चल जाए एक रिश्तेदार ऐसी भी है जिसके लिए मनसबदार खड़ा होता है। बात में समझा पाया या नहीं समझा पाया? लीजिए दूसरे रुख से पेश कर रहा हूं। मैंने कहा बीबी आप फातिमा हैं, बीबी आप अजरा हैं, मुहद्दिसा हैं, बुतूल हैं, ताहिरा हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास कोई मनसब नहीं है। का गलत कह रहा? मनसब होना बाफजीलत होने की दलील नहीं है, बगैर मनसब के भी हम जैसा बाफजीलत है। मैंने कहा फिर बीबी आपके वजूद मुताहर के माना क्या है? का यूं समझ कि कोई मनसब इस लायक ही नहीं है जो कदे फातिमा के काबिल हो। हाय 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 हाय, बात तो तमाम हो गई है, बस लफ्ज कहना रह गया है। इमाम होना है, मादरे इमामत होना। अब वो मशहूर लफ्ज भी सुनिए जो मैं पहले कह के गया था, अब आ रहा है वो लफ्ज, मुतवज्जे रहिएगा, अब आ रहा है वो लफ्ज। दुनिया में दो ही रुख का नाम दुनिया है, दो ही मनसबों का नाम दुनिया है। एक नबूवत की दुनिया जो आदम से मिली, आदम से खातम तक, एक इमामत की दुनिया जो अली से कयामत तक। दो ही मनसब तो है, इन दो मनसबों में ये पूरी दुनिया बन। अल्लाह ने कहा फातिमा को पहचानो, मैंने नबूवत को इब्तदा बनाया, इमामत को इंतहा बनाया, बीच में फातिमा को रखा। ये इधर की भी जिम्मेदार है, इधर की भी जिम्मेदार। ये इधर की भी जिम्मेदार है, इधर की भी जिम्मेदार है। अगर फजीलत फातिमा सुन ही रहे हो तो आखिरी लफ्ज सुनो, अगर फातिमा न होती तो न ये दुनिया बनती न बचती। अगर बाप मोहम्मद न होता तो बनती नहीं, बेटा मोहम्मद न होता तो बचती नहीं। लफ्जों को बदल के यूं कहो, खातम के सदके में बनी है, कायम के सदके में बची है। ये फजीलतें हैं। अरे फजीलत किसे कहते हैं? फजीलत वो है जो फातिमा से मंसूब हो जाए। अजमत किसे कहते हैं? अजमत वो है जो फातिमा के घर पहुंच जाए। कमाल किसे कहते हैं? कमाल वो है जो फातिमा के कदम चूम ले। क्या चीज कमाल है? कमालात तो नीचे भी ना उतरते अगर फातिमा ना आती। फातिमा ने बुलंदियों को मंसूब कर दिया जमीन से। फातिमा ने बुलंदियों को मंसूब कर दिया जमीन से। आप कहेंगे मौलाना नहीं, नहीं क्या मतलब? फहरिस्त गिनाना शुरू करो, कौन बड़ा अब तक, कौन बड़ा है? फहरिस्त गिनाना शुरू करो। कताब लोग मैं फहरिस्त गिना रहा हूं। कुरान मजीद में अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, ऐ कौम बनी इसराइल, मैंने तुम्हें आलमीन पर फजीलत दे दी। ओहो, ये बनी इसराइल है जो दुनिया में सबसे ज्यादा बाफजीलत है। मैंने बनी इसराइल से पूछा जी तुम कैसे बोले हो? ये सलवार भेजे मोहम्मद वाले। तुम जो ढंडोरा पीटते फिर रहे हो कि हम सारी दुनिया में सुपर पावर हैं, तुम कैसे बड़े बने? कुरान ने कहते तुम्हें कह दिया नहीं फसल तो तुम अल्लाह का, वो इसलिए कह दिया कि हमारे पास मनु सलवा आया। ओहो, मैंने कहा भुने हुए तीतर खा के तुम बाफजीलत बना। हमारे ऊपर मनु सलवा। बात आगे बढ़ी। दूसरी फजीलत किसे मिली? जनाब ईसा। क्यों? का आसमान से दस्तरखान आ गया। ओहो, मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है। ये तख्ता तय होता जा रहा है कि जिसके पास कुछ आसमान से आ रहा है वही बड़ा है। मुझे रहिएगा, दौर बदल रहा है। इन्हें मनु सलवा मिल गया,
भीतर, ये बड़े बन गए। जनाब ईसा को मायदा मिल गया, वो बड़े बन गए। एक बीबी आई जनाब मरियम, उनसे पूछा कि ये कहां से आया आपके पास रिस्क, ये बेफसले अनार आपके पास कहां से आया? उन्होंने कहा अल्लाह के पास से, ये फजीलत। ओहो, मैंने कहा इसका मतलब बाफजीलत वो है जो आसमान से उसे कुछ मिले, ये तय हो गया। अगर बाफजीलत अब तक की दुनिया में वही रहा है जिसने आसमान से कुछ ले लिया, तो आओ जनाब फातिमा के पास, जब चाहा जब लिबास मंगा लिया, जब चाहा जब दस्तरखान मंगा लिया। क्यों मंगा रही है बीबी दस्तरखान, क्यों मंगा रही है आप लिबास? का दुनिया को बता दे कि अब तक की फजीलत ये है, अब तक के बड़े ये हैं कि जो आसमान से कुछ मंगा ले। तो मैंने कहा आपकी खुसूसियत क्या है? का मंगाने वाले और हैं, रोटियां पकाकर भेजने वाले और। मैं अज़मतों की दुनिया में वो तकमील हूं जिसके बगैर न इब्तदा मुमकिन है न इंतहा मुमकिन है। मैं कुदरते कामिला का वो कानून हूं जमीन पर जिसकी वजह से बुलंदियों का रुख जमीन की तरफ होता है। मैं विरासत इस्लाम हूं, मैं शरीयत हक्का हूं, मैं ही वो कामिल तारुफ हूं जिसके जरिए से इंसान नबूवत शनास बनता है। आज जो दुनिया इस्लाम के नाम पर धब्बा बन रही है, वो वही है जिसने मेरे बगैर मोहम्मद को पहचाना। उम्मत की महरूमी यह है कि वो डायरेक्ट मोहम्मदी मुसलमान बन गई, जबकि उसे चाहिए था कि वो पहले फातिमी मुसलमान बनती। फातिमी मुसलमान, आपने अरब में देखा होगा कि अरब में जितने भी शिया कफील पाए जाते हैं, शिया कफील पाए जाते हैं, वो अपने को मोहम्मदी नहीं कहलवाते, फातिमी कहलवाते है। हमारा कफील फातिमी है, तो जो फातिमी है क्या वो मोहम्मदी नहीं है? इसका मतलब ये कि वो कफील फातिमी कहलवा के बताता है कि मोहम्मदी में और फातिमी में फर्क है। हाय 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 हाय, यही वजह है कि अब हमने अय्यामे फातिमी किए ताकि दुनिया को पता चल जाए हिंदुस्तान में मोहम्मदी मुसलमान और है, फातिमी मुसलमान और। तवज्जो दे रहे हैं आप? और अगर जनाबे फातिमा तय नहीं होगी तो फिर कभी तय नहीं हो सकता कि मुसलमान कौन है। मुसलमान कौन है? ईसाई क्या तय करेगा कि भाई ये कौन है? करबला में दो तरफ दो आदमी खड़े हैं, एक कब्र गिराना चाहता है, एक कब्र चूमना चाहता है। तुम कौन हो, तुम कौन हो? कलमा तो दोनों ही पढ़ रहे हो, का दोनों में यही फर्क है, ये मोहम्मदी मुसलमान है, ये फातिमी मुसलमान है। फातिमी मुसलमान का शोर जरूरी है, फातिमी लफ्ज का शोर जरूरी है, फातिमी हकीकत का शोर जरूरी है। यही वो चीज है जो हदीस के सामने सबूत है। अभी तक इनका इशारा नहीं है कि क्या बच गया, नहीं चली। क्या सोच रहे हो? सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद 4:55। बस आखिरी बात, अजीजों महसूस किया आपने हदीस किस्सा, वही हदीस किस्सा जिसे हम आम तरीके से पढ़ते हैं, उसमें फातिमा ज़हरा का तारुफ होता है, और ऐसा तारुफ जो दुनिया की कोई हकीकत उसे मिटा नहीं सकती। जब मैं हदीस किस्सा पढ़ रहा था तो उसमें पहला लफ्ज आया कि इमाम हसन ने आके अपनी अम्मी को सलाम किया। आज हमसे कहा जा रहा है भारत माता की जय करो, अरे कम से कम हमसे हमारी जबान तो बुलवाओ, हमसे हमारी जबान बुलवाओ यार, हम तो माता को सलाम करते चले आए। लेकिन माता इस काबिल तो हो, फिर मुसलमानों से कह रहे हो कि वो भारत माता का, भारत अम्मी का है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, हमसे हमारी जबान बुलवाओ, हमें कहने दो भारत अम्मी, तुम्हें बर्दाश्त होगा? हमारी अम्मी बर्दाश्त नहीं, हम तुम्हारी माता बर्दाश्त करते हैं।
सलवार दे दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तुम लफ्ज़ अम्मी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। जनाब इमाम हसन कौन हसन? जो 55 में असरार हक सुनाने वाले थे, वो जिनके लिए मसनद अहमद में इमाम अहमद इब्न हंबल का जुमला है, कद युताल अल लोहे महफूज। हसन उसे कहते हैं जो बचपने में लोहे महफूज का मुतालिया करता है। खुदा की कसम तुम्हारे सुनने का भी मिजाज अलग है। कद युताल अल लोहे महफूज, ये वो शख्स है जो बचपन में लोहे महफूज का मुतालिया करता। वो हसन आता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं, मेरे नाना कहाँ हैं? घर में रहते हुए नाना का एड्रेस जनाब फातिमा ने बताया कि जाओ मेरे लाल, चादर के नीचे सोए हुए। वो आदमी जो लोहे महफूज तक की नजरें रखता हो, क्या उसे चादर तत्हीर में नाना दिखाई नहीं दे रहे थे? जो बाहर की खुशबू की आहट पाकर सहने सहरा में आ गया हो, उस आदमी को चादर तक जाने में तामुल था? नहीं, कोई तामुल नहीं था। गए और चादर में जाके दाखिल हो गए। उसी मिजाज का दूसरा इंसान, उसी शख्सियत का दूसरा तर्जुमान, उसी नूर का दूसरा खानदान आया और आने के बाद में कहता है कि अम्मी वही लफ्ज़ें जो भाई ने कही थी, मैं अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं। कहा जाओ बेटा, तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारे नाना। तुम्हें पता चला कि सबसे करीब कौन है रसूल अल्लाह के? गुर्बत का दावा करने वाले चादर तखीर में झांक के देखें कि दूसरा करीब भी दिखाई नहीं देता। कौन है? क्या तुम्हारे नाना चादर में हैं? अब वो आया जिसने ये ऐलान कर दिया था कि मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूं। अली मुर्तजा ने घर में कदम रखा। मैंने कहा अली, तुम ना पूछ लेना वरना शिय्यत दम तोड़ जाएगी। क्या बात कर रहा है? मैंने कहा आप तो ये कह चुके हो कि मेरी आंखों के सामने पर्दा पड़ जाए तो मेरी यकीन में कमी नहीं आएगी। पर्दे पड़ जाए या हट जाए मेरे यकीन में कमी नहीं आती। तो आप ये भी नहीं जानते कि चादर के नीचे कौन है? क्या तू ये सोच रहा है कि मुझे पता नहीं है कि चादर के नीचे कौन है? तो मैंने कहा अगर पता है तो पूछ क्यों रहे हो? लायानी बाकी करने से क्या फायदा? कहा इसलिए नहीं पूछा है, कयामत तक उम्मत को सबक देने जा रहा हूं कि पहला इमाम आया, उसने पूछा कि नाना कहां है? दूसरा इमाम आया, उसने पूछा कि नाना कहां है? तीसरा इमाम आया अली मुर्तजा, उसने फातिमा से पूछा कि फातिमा नबी कहां है? इसका मतलब यह कि हम इमाम होकर दुनिया को यह सबक दे रहे हैं कि जब हम इमाम होकर बगैर फातिमा के नबी तक नहीं जा रहे हैं तो तुम अवाम होकर बगैर फातिमा के नबी तक कैसे जाओगे? क्या असले? जनाब फातिमा राज़े मारिफत पैगंबर। इमाम खुमैनी से पूछा गया, एक राइटर आया, ये रिपोर्टर जो होते हैं अकीदे बयान करते हैं अल्फाज। इमाम खुमैनी के पास आया। आजकल तो ये लफ्ज़ें भी लोगों को बुरी लगने लगी है ना। इमाम खुमैनी, आयतुल्लाह सिस्तानी, ये लफ्ज़ें भी बुरी लगने लगी। क्यों बुरी लगने लगी है? इसलिए कि खुम्स तो जा रहा है उधर और पैसा आ रहा है इधर। आयतुल्लाह ने तो पब्लिक को कभी कुछ दिया नहीं, अब पब्लिक को डायरेक्ट मिलने लगा तो कहा मुल्लाओं के खिलाफ बोलो। क्या बात है? मगर ये बात तो तय हो गई कि देकर मानना और है, लेकर मानना और है। देकर मानने वाले और हैं, लेकर मानने वाले और हैं। तो उससे क्या हुआ? हदीसें भी की हैं, अकीदे ही बिक गए तो कौन सी आफत है? बिकने वाले हर दौर में। तो इमाम खुमैनी के पास आया और आने के बाद में कहता है कि हुजूर, सहाबा के बारे में आपका क्या ख्याल है? जनाब इमाम खुमैनी ने आंखें ऊपर उठाई और उससे कहा कि ये तू पूछ रहा है या दुनिया तक पहुंचाना चाहता है? कहा क्यों? कहा अगर तू पूछ रहा है तो मैं तेरी अकल के मुताबिक जवाब दूंगा। हाय हाय हाय, दूसरा
तेरी अकल के मुताबिक जवाब दूंगा, और अगर तू ये जमाने तक पहुंचाना चाहता है तो अपने अकीदे के मुताबिक जवाब दूंगा। का आपकी नजर में सहाबा की अहमियत क्या है? सवाल उसका ये है। इमाम खुमैनी ने कहा कि क्यों? कहा मैं तो दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। आप बताइए कि आपकी नजर में सहाबा की अहमियत क्या है? तो मुस्कुरा के फरमाया कि जो सहाबा की अहमियत हुजूर की नजर में है, जो सहाबा की अहमियत हुजूर की नजर में है वही मेरी नजर में। एक सहाबा की नजर में, एक मोहम्मद की नजर मेरे पास भी है। मोहम्मद अक्सर अपनी बज़्म में बैठ के कहा करते थे कि मैं तुम में से बहुत से लोगों के अंदर मुनाफिकत के कीड़े चलते देख रहा हूं। एक नजर तो मेरे पास भी है, एक नजर कुरान मजीद की भी है कि जब कुरान मजीद में सहाबा को हौज़ कौसर की तरफ जाते हुए देखकर फरिश्ते पीछे की तरफ धकेलेंगे तो मोहम्मद मुस्तफा कहेंगे हाँ ये तो मेरे असहाब है। तो तुम नहीं जानते इन्होंने तुम्हारे बाद क्या क्या हरकतें की है। अच्छे दे रहे आप। कहा कि सहाबा की अहमियत आपकी निगाहों में क्या है? का जो मोहम्मद की नजरों में है तो वो कहता है क्लियर नहीं हुई बात। हाय 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 हाय, कहता है क्लियर नहीं हुई और क्लियर कीजिए। का इसका मतलब ये कि तू ये समझता है कि जब तक बात मोहम्मद तक रुकी रहेगी बात क्लियर नहीं होगी। तो अब मैं तुझसे कहता हूं जितना सहाबा को फातिमा समझती है उतना ही मैं समझता हूं। जो अहमियत जनाबे फातिमा की नजर में सहाबा की है वही अहमियत मेरी नजर में है। अगर वो किसी को अजीम मानती हैं तो मैं अजीम मानता, अगर किसी को कसीर मानती हैं तो मैं कसीर मानता, अगर वो किसी को जलील मानती हैं तो मैं जलील मानता, अगर वो किसी को जलील मानती है तो मैं जलील मानता। मेयार फातिमा है, मेयार मारिफत फातिमा है। और अब मैं एक लफ्ज कहूंगा, आप बस सुन लीजिएगा, इतना ही काफी है। अगर इमामत और नबूवत होती तो लफ्ज़ हुज्जत को एतबार न मिलता। एक हदीस मुझे याद आ रही है, एक सलवार पढ़ते मोहम्मद वाले में। अजीब हदीस है, अजीब हदीस है। इमाम ज़माना फरमाते आना हुज्जतुन अलैकुम, मैं तुम्हारे ऊपर हुज्जत हूं। ये उसी मसले का एक हदीस है। आना हुज्जतुन अलैकुम, मैं तुम्हारे ऊपर हुज्जत हूं। वल फातिमा तो हुज्जतुन अलैना, और फातिमा हमारे ऊपर हुज्जत है। इसका मतलब यह है कि इस्मत के लिए इक़्तिदार, इस्मत के लिए इक़्तिदार, इस्मत के लिए राह मुअय्यन। यही वजह है कि जब इमामों पे नजर पड़ती है तो दुनिया लिखती है यब्न रसूल अल्लाह, और जब औलादे फातिमा पे नजर पड़ती है तो दुनिया लिखती है यब्न फातिमा। दो ही लफ्ज़ तो वजूद पजीर नहीं, यब्न फातिमा। मैं एक लफ्ज कहूंगा कि कुरान फातिमा से लेता रहा, मोहम्मद को देता मुबाहले में बेटे ले लिए, मोहम्मद को दे दिए, हिजरत में शौहर ले लिया, अली ले लिया। जो कुछ फातिमा का था सब मोहम्मद के लिए वक्फ होता चला गया। यहां तक कि मोहम्मद को कहना पड़ा कि सबका नसब और हसब उसके सुल्ब से होता है, मेरा सबब और नसब सबका सब अली के सुल्ब से। इसका मतलब यह है कि जागीर मोहम्मद आहिस्ता आहिस्ता जागीर अली बनती चली गई।
فاطمہ زہرا جس نے اپنے کمالات کو روکا، محمد کے اسلام کو بلند کیا۔ میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں کہ دنیا انسانیت کو سیرت محمد ڈھونڈے بھی نہ ملتی اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی۔ بابا آپ کا کام تھا بلال جیسے غریب کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کرنا، میرا کام تھا فضہ جیسی کنیز کو قرآن کی آیت میں کھڑا کرنا۔ ایک عجیب سیرت تھی، ایک عجیب نمونہ تھا۔ دن گزرتے چلے گئے، قربانیاں پڑتی چلی گئی، اولادیں لٹاتی چلی گئی فاطمہ، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ جب زمانے نے تنگیوں کو قریب کر دیا، وہ گھر جو کبھی عزت کا نہ ہوا کرتا تھا اس پر لوگ لکڑیاں اور آگ لے کر آئے۔ تم بہت روتے ہو جناب فاطمہ کے نام پر، بہت روتے ہو جناب فاطمہ کے نام پر، تمہیں بڑا ناز ہے جناب فاطمہ پہ رونے پر، لیکن میں آج تم سے کہتا ہوں کہ اگر ایک گھر میں ایک بیوی کے مرنے پر تم اس قدر تعداد میں جمع ہوئے ہو تو چلو فاطمہ کے اس جنازے میں شریک ہو جاؤ جس میں ایک یتیم بچی اس لیے تابوت میں چل رہی تھی کہ ماں کے جنازے میں آدمی بہت کم تھا۔ رو جتنا رو سکو، میں اگر مجلس میں صرف ایک جملہ کہہ کر نیچے اتر آؤں تو تم روتے رہ جاؤ گے۔ جب جب عزاداری کرنا، جب جب کہیں پر کسی عورت کے اصالے ثواب کی مجلس میں پہنچنا، تمہارے سامنے اہل بیت کے گھرانے میں سے کوئی مسائل پڑھے جائے تو سنو، دو بیٹیوں کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ جب دونوں بیٹیوں کے نام کھولوں گا تو مرثیہ ہو جائے، دو بیٹیوں کو کبھی فراموش نہ کرنا، ایک محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا اور ایک حسین کی بیٹی فاطمہ سہرا۔ کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 18 سال کی زندگی میں فاطمہ نے عصا کا سہارا لیا اور 18 سال کی زندگی میں فاطمہ سغرا نے عصا کا سہارا لیا۔ ایک روایت جو میں نے پڑھی ہے وہ تمہیں سناؤں۔ جب بیویاں مدینے میں آ گئی تو ایک راوی نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اچانک ہاشمی محلے میں جب جا کر بیویاں کھڑی ہوئی اور جناب سغرا عصا کا سہارا لے کے گھر سے نکلی تو سب سے پہلا آدمی جس کی نظر جناب سغرا پر پڑی وہ جناب سید سجاد تھے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب سید سجاد نے سغرا کو دیکھا اور منہ پھیر لیا، اور منہ پھیر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ برابر والے نے پوچھا مولا یہ کیا ہوا؟ کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بہن بوڑھی ہو گئی۔ ان سے کہو کہ وہ میرے محلے میں سر کھول کے ماتم نہ کرے، اس لیے کہ میرا بابا سفر میں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ فاطمہ نے ایک بھی بیوی کو نہ پہچانا۔ خدا تمہیں کسی غم میں رو رہا سوائے ہمیں رو چکے تم، گریہ کیا تم، لیکن جب جب رونا تو اس بات پہ ضرور رونا کہ جناب فاطمہ نے فرمایا سبت علیہ مصائب، اگر یہ مصیبتیں جو مجھ پر پڑی وہ دنوں پہ پڑ جاتی تو رات کی طرح سیاہ ہو جاتے۔ گھٹ گئی تھی جناب فاطمہ، 18 سال کی عمر عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی۔ اب بھی روایتیں یہ کہتی ہیں کہ ایک ضعیفہ خواب میں آئی۔ کیوں؟ 18 سال کی عمر کیا ضعیفی کی عمر ہوتی ہے؟ لیکن میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اگر کسی انسان پر صدیوں کے مصائب پڑ جائیں تو وہ لمحوں میں بوڑھا ہو سکتا ہے، لمحوں میں بوڑھا ہو سکتا ہے۔ بس میں نے بات کو تمام کیا۔ جناب فاطمہ کی یہ روایت یہ بتاتی ہے کہ جب رسول اللہ کے بعد 6 مہینے جتنے بھی دن زندہ رہی، ایک عجیب طریقہ تھا کہ جب تک علی باہر رہتے تھے فاطمہ بار بار دروازے میں آتی تھی۔ ایک دن ایک کنیز نے پوچھ لیا کہ بی بی آپ بہت بے چین رہتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ بار بار دروازے پہ کیوں آتی ہیں؟
کا اس لیے کہ میرے شوہر سے زمانہ پھر رہا اس لیے کہ میرے شوہر سے زمانہ پھر رہا مجھے علی کی فکر لگی رہتی ایک دن علی باہر سے اندر کی طرف آئے ابھی دروازے میں قدم ہی رکھا تھا کہ جناب علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا علی مرتضیٰ یہاں بیٹھیے آج میں جو تم سے پوچھوں بتانا علی کوئی چیز چھپانا نہیں جناب علی مرتضیٰ نے کہا ہاں فاطمہ پوچھو بنت رسول جو پوچھنا ہو پوچھو کہا علی مجھے بس اتنا بتا دو میں نے سنا ہے کہ لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے سن لیا تم نے لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے علی مرتضیٰ نے اٹھتے ہوئے جواب دیا فاطمہ میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیں گے گریا کرو اس لیے کہ جناب فاطمہ کا نام آ رہا ہے جناب زہرا کا نام آ رہا ہے جناب بدول کا نام آ رہا ہے بس آخری بات سنو مجھ سے جناب فاطمہ نے وصیت شروع کر دی علی میرا جنازہ شب میں اٹھانا علی میرے جنازے میں فلا فلا کو نہ آنے دے علی میرا تابوت اس طرح چلے کہ کوئی بدن دیکھنے نہ پائے علی میں نے ایک تابوت بنا کے تیار کیا ہے اسی تابوت میں میرا جنازہ اٹھا علی میں اپنے بچوں کو تمہارے حوالے کرتی ہوں علی اگر میرے بعد کسی سے شادی کرنے کا ارادہ ہو تو ایسی ماں لانا جو حسنین کے اوپر مہربان ہو اب جملہ سنیے جس جملے کے لیے میں مسائل پڑھا کرتا ہوں جناب فاطمہ کہتی ہے کہ علی ایک بات کا زیادہ خیال رکھنا کہ میرا حسین کہیں پیاسا نہ رہ جائے مجلس اسی میں تمام ہو جاتی ہے علی مرتضیٰ نے پوچھا کہ فاطمہ یہ کیوں کہہ رہی ہو کہا کہ علی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں راتوں کو جگہ جگہ کر حسین کو پانی پلاتی ہوں اس لیے کہ میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے علی مرتضیٰ نے کہا نہیں فاطمہ وہ حسین کی پیاس نہیں ہے جب سے تم نے سنا ہے کہ تمہارا بچہ پیاسا مارا جائے گا ارے تم اسے پیاسا نہیں رہنے دے اجرکم اللہ اجرکم اللہ چلو اس مجلس کو حوالے کرو جناب فاطمہ دعا کرو کہ امام زمانہ تم پہ مہربان ہو جائے تمہارے اعمال اس مجلس کے صدقے میں قبول ہوں تمہارے آنسو کسی طرح سید سجاد تک پہنچے محشر کے لیے دعا کرو کہ نامہ اعمال کے سامنے تمہارے یہ آنسو جمع ہو جائے اب آخری لمحہ اور آخری لفظ مجھ سے سنو جناب فاطمہ نے ایک وصیت اور کی علی میری قبر بنا کر میری قبر کا نشان مٹا دے کئی قبریں بنانا تاکہ دشمن میری قبر اکھاڑ نہ لے لیکن علی ایک کام ضرور کرنا روزانہ شام کو جب اندھیرا ہونے لگے تو میری قبر پہ آ کر یاسین ضرور پڑھنا اے علی جب تک وہ میری قبر پہ آنا بس میں مجلس تمام کر چکا دو وصیتیں تھی میرے حسین کو پیاسا نہ رہنے دینا میری قبر پہ آنا راوی لکھتا ہے کہ ایک دن وہ آیا کہ جناب علی مرتضیٰ جناب فاطمہ کی قبر پہ بیٹھے ہوئے یاسین پڑھ رہے تھے کہ اچانک قبر ہلنے لگی جناب علی نے ہاتھ رکھ کے پوچھا اے بنت رسول کیا معاملہ ہے کیا بات ہے کالی یاسین بند کرو میرے گھر چلے جاؤ میرا حسین پانی تلاش کر رہا ہے تم جانتے ہو علی کہ میں حسین کی پیاس برداشت نہیں کر سکتی میں کہوں بی بی وہی حسین ہے خنجر کے نیچے تشلا تب ہے شیور خنجر جلا رہا ہے زینب چیخ رہی ہے اے شیور میرے بھائی کو پانی پلا دے میرے بھائی کو پیاس بہت لگتی ہے سیعلم الذین ظلموا ای منقلب الہی بحق الزہرا وعلیہا وبالہا وبنیہا پروردگار عالم حاضرین مجلس کے عقدہ مشکل کو حل کر میرے معبود بیماروں کو صحت یاب فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کرنا پیارے کے عزادار ہیں کوئی غم نہ دینا سوائے
اس کو مرحومہ کی روح کے لیے تسکین قرار دیتے، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت کرنا، پروردگار عالم امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمانا۔ ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ کی روح کو احسان ثواب کرنا۔ سکینہ بانو بنتے محمد محسن۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کل کی مجلس کا اعلان سنا فرمائیں، کل بوقت 3 بجے سے بحر چوٹا میں ایک مجلس ہوگی جس کو والد جناب مولانا سید میثم زیدی صاحب اللہ لکھنوی خطاب فرمائیں گے، مومنین سے شرکت کی گزارش ہے۔ اور محمد حسن مرحوم کے فاتحہ خوانی کی مجلس کل نماز ظہرین کے بعد ہوگی، صبح سے قرآن خوانی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محمد حسن مرحوم کے فاتحہ خوانی کی مجلس کل نماز ظہرین کے بعد ہوگی، اس کو علی جناب مولانا سید حسن رضائی صاحب بلا خطاب فرمائیں گے۔ کل بعد نماز ظہرین فاتحہ خوانی کی مجلس کو مولانا حجت الاسلام سید حسن رضائی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور سہ پہر میں 3 بجے مولانا